Hello everyone, welcome back on English Zone. With you all, this is Priyanka Singh and आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं. Today we are going to talk about Othello, an important play by William Shakespeare, and in this video we will cover important characters, brief summary of this play, Othello, and Othello is regarded as one of the फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें हम बात करते हैं मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो की. प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे आज इस सेशन में जुड़ सकें. एंड स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले, दैट वाज ओथेलो. Othello, the tragedy of Othello, or the Moor of Venice, is the full title of this play that was written by William Shakespeare, Othello. But commonly we know this play by the name of Othello. Who was the protagonist of this play? जो इस play का protagonist होता है, his name was also Othello, और उसी के name के behalf पे ये play जो है टाइटल्ड है. और इसका फुल टाइटल जो मैंने आपको अभी बताया, दैट वाज द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस, इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर. वी ऑल नो that this is one of the great four tragedies we have in English literature that was written by William Shakespeare. Next important introduction and fact we have about Othello play. Othello is a tragedy. This is written in 5 acts by William Shakespeare, and it was first performed in the year 1603 to 1604. So आप ये समझ सकते हो कि ये लिखा है, परफॉर्म्ड हुआ था जब ये प्ले, उसका टाइम ड्यूरेशन था 1603 से लेकर के 1604 के मिड में ये प्ले परफॉर्म्ड हुआ है इंग्लैंड में. एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1622 इन क्वार्टो एडिशन ऑफ एन मैन्युस्क्रिप्ट, और टेक्स्ट की फॉर्म में ये प्ले का पब्लिश हुआ है. दैट वाज पब्लिश्ड इन द year 1623 and it was included in the first folio edition of 1623. So मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में 1622 में ये फर्स्ट इसका एडिशन जो पब्लिश हुआ था इन क्वार्टो एडिशन, एंड टेक्स्ट फॉर्म में या बुक फॉर्म में जब ये पब्लिश हुआ है, दैट वाज इन फर्स्ट फोलियो इन द ईयर 1623. बात करते हैं फ्रॉम वेयर the source of this play Othello was taken or adapted by the William Shakespeare. And here we have the Othello was an adaptation of the Italian writer Cinthio. Cinthio's की टेल का ये adaptation work है Capitano Moro, जिसका मीन्स होता है because Cinthio was the Italian writer and poet and he had written his title in Italian language, और जिसका टाइटल था Un Capitano Moro, and the English meaning of that title was a Moorish captain. That's why William Shakespeare ने अपने इस वर्क में ओथेलो प्ले में जो सब टाइटल या फुल टाइटल जो इसका था इस प्ले का, that was a Moor of Venice. And from his work, that was from his ग्ली हेकाटोमेथी, जो कि 1565 में लिखा गया था. सो ओवरऑल एडेप्टेशन की बात करते हैं ओथेलो प्ले की, एंड दैट वाज एडेप्टेड बाय द Italian writer's tale, Cinthio's tale, that was on Capitano Moro, जिसका मतलब होता है a Moorish captain. So overall हमको ये पता चल गया कि we had discussed about the source of this play and some important brief introduction of the Othello play. अब चलिए बात कर लेते हैं important characters who were involved in this play. इसके बाद मैं आपको brief summary discuss करूंगी आपसे इस play की. And the characters we have in this play: Othello, the general in the Venetian military. Next important character we had Desdemona. Desdemona जो थी ओथेलो की वाइफ थी and daughter of Brabantio. Brabantio का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वी हैव Iago. सो यहाँ पे जो तीन मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर, जो फर्स्ट थ्री इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया अभी, दे वर रिगार्डेड एज द फर्स्ट थ्री मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, जिनके आसपास ये स्टोरी, इस प्ले की स्टोरी रिवॉल्व करती है या जिन पे बेस्ड ऑन है यहाँ की ओथेलो की स्टोरी. Iago, Othello's trusted but jealous and traitorous ensign. Even Othello believes on him, Iago, but he was a jealous man and who takes revenge, who is jealous of the position of the Othello. Next important character we have Cassio, Othello's loyal and most beloved captain. Next we have Emilia, Iago's wife and Desdemona's maidservant. Next we have Bianca, Cassio's lover. Another important character जिनकी मैं बात कर रही थी, Brabantio जो थे
वेनेशियन सेनेटर थे एंड डेस्टिमोना के ही फादर थे, जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। एंड नेक्स्ट वी हैव रोजरेको, डिसोल्यूट वेनेशियन इन लव विद डेस्टिमोना। सो ये कैरेक्टराइजेशन है इस प्ले का। सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जिनके विषय में मैं अभी आपसे इसकी स्टोरी में ब्रीफ समरी में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द ब्रीफ समरी ऑफ दिस play, Othello. Iago is furious about being overlooked for promotion and plots to take revenge against his general Othello. This is the story start with the promotion, जहाँ पे Othello जो होते हैं, इनका जनरल जो होता है Iago का, he promoted Cassio in place of Iago, क्योंकि Iago को पता होता है कि I would be promoted, but on his place Cassio was promoted by Othello, और because of this when he was overlooked for promotion, then he plots to take revenge of that against जनरल ओथेलो। और वहां पे फिर वो मूर ऑफ वेनिस के अगेंस्ट एक प्लॉटिंग करता है टू टेक रिवेंज, क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिला था, उसकी जगह पे कैशियो को प्रमोशन मिल गया था। इवन ही वाज द ट्रस्टवर्दी ऑफ ओथेलो, बट वो ईगो मैनिपुलेट्स ओथेलो इनटू बिलीविंग हिज वाइफ डेस्टिमेना इज अनफेथफुल। ये स्टोरी है जो ब्रीफली मैं आपको वहां पे डिस्कस कर रही हूँ। ईगो जो है वो मैनिपुलेट करता है बिकॉज ओथेलो वाज black African guy and Desdemona was very beautiful lady. Iago manipulates Othello into believing his wife कि उसकी wife Desdemona is cheating her, and she is in love with Cassio, and Cassio in his absence he meets डेस्डेमोना, एंड इस तरीके की मैनिपुलेटिंग बातें करके वो ओथेलो को मैनिपुलेट करता है अगेंस्ट हिज वाइफ डेस्डेमोना, और दिस ऑल स्टीयर्स द जेलेसी एंड दिस स्टीयर्स द एंगर ऑफ ओथेलो। और इस वजह से वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ हिज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज जेलेसी, ओथेलो किल्स डेस्डेमोना, मर्डर डेस्डेमोना, एंड आफ्टर दैट ही किल्स हिमसेल्फ। तो इस तरीके की स्टोरी मैंने यहाँ पे डिस्कस की, और इसकी मैं डिटेल एक समरी पूरी बनाऊंगी जिसको कि एक्ट वाइज समरी होगी आपका, वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। What are the important themes involved in this by William Shakespeare we have in this play Othello, and जिसकी बात कर लेते हैं मेजर themes जो Othello में है, they are love between two husband and wife, jealousy also because Iago is very much jealous of the promotion of the Cassio and his general Othello, रेशियल प्रेजुडिस भी यहाँ पे है बिकॉज रेशियल प्रेजुडिस इसलिए कि ओथेलो वाज द ब्लैक अफ्रीकन गाय एंड हिज वाइफ वाज डेस्टिमोना वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंग्लिश लेडी। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो कुछ देखने में है और जो कुछ रियल है, ये सब कुछ, दिस इज द थीम इन्वॉल्व इन दिस प्ले। Expectations versus outcome. What Desdemona expect from her husband? What was the outcome of her expectation? That all are the important themes involved in this play Othello. So आपको themes भी इस पे समझ में आ गई होंगे कि love, jealousy, racial prejudice, appearance, reality, expectations and outcome. These all are the important themes that are discussed by the विलियम शेक्सपियर इन दिस प्ले ओथेलो। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके कोटेशंस की। व्हाट आर द कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशन, और मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कोटेशंस यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है इस वीडियो में। इवन इट हैज अ लॉट ऑफ कोटेशन इन दिस प्ले ओथेलो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन जिसकी मैं बात करूंगी यहाँ पे, दैट इज ओ बिहेवियर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज अ it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। ये ईगो की स्पीच है टू ओथेलो। ओथेलो से ये चीजें कहता है। एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में ये स्पीच बोली है ईगो ने। इवन ये जो स्पीच है, ईगो इज मैनिपुलेटिंग ओथेलो अगेंस्ट हिज वाइफ डेस्डेमोना, बट फिर भी वो ये चीजें कहता है कि यस बी अवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है इस प्ले हैमलेट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात कर लेते हैं, दैट वाज रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माय सेल्फ, एंड what remains is bestial। This is the important quotation of this play Hamlet, and Cassio की स्पीच है एक्ट सेकेंड और थर्ड, सीन थर्ड की ये स्पीच है, कैसियो ने इसको बोला है। सो इस तरीके से जो एक थीम आप इन कोटेशंस के थ्रू भी समझ सकते हो कि किस तरीके के थीम का यूज करा गया है इस प्ले में ओथेलो में। जैसे जेलेसी की बात हुई है, रेपुटेशन की बात हुई है, लव की बात हुई है, एंड ऑल्सो
appearance and reality की बात जो मैंने अभी डिस्कस किया. So all these are important themes involved in this play. William Shakespeare's The Merchant of Venice, which is an comic play that was written by William Shakespeare. And first of all हम characters की बात करते हैं बहुत ही briefly. Antonio, Sherlock, Portia, Bassanio and Jessica. These are the important characters. सिर्फ important characters ही यहाँ पे मैंने mention कर रखा है इस पहले introduction में. And नेक्स्ट है ओरिजिनल लैंग्वेज. किस लैंग्वेज में ये वर्क लिखा गया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट वाज रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. सीरीज फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ है 1623 में, क्योंकि जितने भी प्लेस विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं दे ऑल पब्लिश इन द ईयर 1623 इन फर्स्ट फोलियो. सो दिस प्ले वाज फर्स्ट published in the year 1623. Next बात करते हैं सब्जेक्ट की. What is the subject matter in this play? That was discussed about the debt. Debt की बात हो रही है, कर्ज की बात हो रही है इस प्ले में विलियम शेक्सपियर के The Merchant of Venice. जैसा आप नेम से भी समझ सकते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो व्यापारी है वेनिस के उनसे रिलेटेड है, तो व्यापारी है तो वहाँ कर्ज का लेन देन, पैसे का लेन देन, इस सभी से रिलेटेड इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने डिस्कस करा हुआ है. नेक्स्ट है genre. This is the Shakespearean comedy that was written by William Shakespeare. And the setting, कहाँ का play है, कहाँ का setting है involved इस play में, and the area and the setting of this play is in Venice. Next बात कर लेते हैं about the brief intro of this play that was Merchant of Venice. And this is the Merchant of Venice 16th century का play है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. And this is in which the merchant of Venice named Antonio defaults on a large loan provided by Jewish moneylender Shylock. Shylock जो था जो पैसे उधार देता है Shylock, और एंटोनियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, वो उससे बहुत ही लार्ज अमाउंट लोन लेता है शाइलॉक से. एंड दिस वाज द प्ले दैट वाज रिटन बिटवीन द टाइम ऑफ 1596 टू 1599. ये 1596 से 1599 के मिड में ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. और बहुत ही कंट्रोवर्सीज है इनके प्ले के राइटिंग ईयर से रिलेटेड, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक ईयर में इन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा है, इससे रिलेटेड कोई एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है. दैट्स व्हाई दीज important plays of William Shakespeare that was written between the years. And इसी तरीके से this play The Merchant of Venice is written in between the time of the 1596 to 1599. And it is the basic of the text published in the year 1623 in the first folio. जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के बात की कि this play was published in the year 1623 after the death of William Shakespeare by his true friend, जिन्होंने फर्स्ट फोलियो में उनके जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस थे उनको कैटेगराइज किया था. दैट वाज कैटेगराइज्ड एज ट्रेजिक प्लेस, कॉमिक प्लेस एंड क्रॉनिकल प्लेस, और जिसे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट फोलियो के नेम से जानते हैं. एंड विच adds a large number of stage directions, mainly musical cues. Yes, ये प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें म्यूजिकल एक मर्सी नाम की जो पोएट्री है, जो कि बहुत ही फेमस पोएटिक एक कन्वर्सेशन होता है जो कि पोर्शिया जो कैरेक्टर है इस प्ले की वो उसको डिलीवर करती है. एंड दैट लाइंस आर नोन इन इंग्लिश लिटरेचर रिलेट एज मर्सी, और उसको हम मर्सी के नेम से जानते हैं. उसमें बात की गई है जब वो शाइलॉक उससे एंटोनियो से पाउंड ऑफ फ्लेश मांगता है, तो किस तरीके से एक लेसन, एक तरीके का लेसन पोर्शिया शाइलॉक को बताती है विद द इंट्रोडक्शन, विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मर्सी. चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की जो कि इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने कैरेक्टराइज किया हुआ है. क्योंकि समरी को जानने से पहले, इस प्ले की समरी को डिस्कस करने से पहले हमें कैरेक्टर्स कौन कौन से इस प्ले में इन्वॉल्व हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनको जानना जरूरी है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटोनियो की. अ प्रोमिनेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस इन अ मेलांकोलिक मूड. यहाँ पे ये इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन हुआ है एंटोनियो जो कि एक प्रोमिनेंट मर्चेंट है वेनिस का. एंड दिस प्ले इज नेम्ड आफ्टर एज द मर्चेंट ऑफ वेनिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इस प्ले में दैट वाज बसानियो. एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड होता है एंड सूटर टू पोर्शिया, और ये प्रेमी होता है, लवर होता है पोर्शिया का. लेटर द हस्बैंड ऑफ पोर्शिया, और ये जो एक मेल लीडिंग कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर है इस प्ले की, जिसको हम पोर्शिया के नेम से जानते हैं. एंड लेटर ऑन Bassanio marries to Portia. Next important character is Portia herself, a rich heiress and later the wife of
बसानियो's प्ले में बाद में बिशानियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है एंड शी इज वेरी मच वेल्दी लेडी इन दिस प्ले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज नेरिसा. पोर्शिया की वेटिंग मेड होती है इन लव विद ग्रेटियानो. Later, the wife of Gratiano disguises herself as Portia's clerk. जब यहाँ पे कोर्ट का सीन होता है इस प्ले में, तो ये जो नेरिसा होती है, जो वेटिंग मेड होती है पोर्शिया की, वो असिस्ट करती है पोर्शिया को एज अ पोर्शिया's clerk in the court scene of this play. जब वहाँ पे कोर्ट सीन मनी का जो लोन नहीं पे कर पाता है एंटोनियो, उस टाइम पे ये उसकी एक क्लर्क के रूप में काम करती है पोर्शिया के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस ऑफ दिस प्ले इज शेलॉक. अ माइजरली ज्यू, एक यहूदी है, कंजूस यहूदी है जो कि मनी लेंडर भी होता है एंड फादर ऑफ जेसिका. शेलॉक वही मनी लेंडर है जिसे एंटोनियो अपने फ्रेंड बिशानियो के लिए पैसे उधार लेता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज जेसिका, डॉटर ऑफ शेलॉक एंड लेटर द वाइफ ऑफ लोरेंजो. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे क्रेटियानो की हमने बात की, लोरेंजो की बात की, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. बट जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी इस प्ले की घूमती है, दे वर एंटोनियो, बिसानियो, पोर्शिया, नेरिसा, शेलॉक एंड जेसिका. अब चलिए बात कर लेते हैं ब्रीफ समरी ऑफ दिस प्ले. एंड ब्रीफ समरी में जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ब्रीफली मैं इस प्ले का एक ओवरव्यू आपको दूंगी इस स्टोरी के थ्रू. एंड दिस प्ले, एंटोनियो जो होता है, जो कि एक मर्चेंट है वेनिस का, वो एंटी सेमेटिक मर्चेंट है जो कि यहूदियों के अगेंस्ट होते हैं एंड वो व्यापारी है. टेक्स लोन फ्रॉम अ ज्यू शेलॉक टू हेल्प हिज फ्रेंड बिशानियो. उसका फ्रेंड जो बिशानियो होता है, जो शूटर होता है पोर्शिया का, उसके हैंड विन करने के लिए या उससे शादी करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए बुसानियो को पैसे की जरूरत होती है. और जो कि वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, एंटोनियो के पास जाता है. और एंटोनियो, बिकॉज वो एक मर्चेंट है और अभी अपनी उसने जितने भी पैसे उसके पास थे उसने अपने शिप्स में लगा लिए हैं, लगा रखा है, और उसके शिप जो हैं वो ऑन बोर्ड है, तो इस वजह से वो उसको पैसे नहीं दे पाता है एंटोनियो बुसानियो को. और एंटोनियो जो होता है वो शेलॉक के पास जाता है, जो कि तो उसके पास हेल्प के लिए जाता है कि यस प्लीज प्रोवाइड मी लोन सो दैट आई कैन हेल्प माय फ्रेंड बुसानियो. तो इस तरीके से एंटोनियो शेलॉक से कुछ पैसे उधार लेता है और वो बोलता है कि यस आई विल रिटर्न इट व्हेन माय शिप्स विल कम फ्रॉम बॉयज, या जो एक जहाँ पे उसने अपने पैसे लगा रखे हैं, जब मेरे पैसे शिप्स मेरे आएंगे तो मेरे पैसे भी आएंगे, देन मैं आपको रिटर्न कर दूंगा. तो वहां पे शेलॉक जो होता है कंडीशन रखता है कि इफ यू विल नॉट एबल टू रिटर्न माय मनी लोन दैट वॉट एवर आई हैव प्रोवाइडेड, जो कुछ मैंने दिया है, तो मैं उसकी जगह पे आपसे आपका मांस का टुकड़ा लूंगा, फ्लैश लूंगा ऑफ योर बॉडी. तो इसमें क्या होता है कि जो एंटोनियो होता है वो अपने लोन को, जो अपनी फ्रेंड की हेल्प के लिए लिया रहता है, वो उसको रिपे नहीं कर पाता है, उसको चुका नहीं पाता है शेलॉक को ऑन टाइम. एंड विदाउट मर्सी शेलॉक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश. जो शेलॉक होता है, जो एक माइजर मनी लेंडर है, वो एंटोनियो से उसके फ्लैश, उसके मांस को मांगता है कि देयर इन प्लेस ऑफ दैट, जो कि कंडीशन हमारा एक साइन हुआ था कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे पैसे नहीं पे कर पाए हो तो आपको आपके बॉडी से आप वो पाउंड ऑफ फ्लैश आपको देना पड़ेगा. एंड इसी टाइम पे पोर्शिया जो होती है वो एक डिस्गाइज के रूप में आती है, द हेरिश पोर्शिया, एंड नाउ द वाइफ ऑफ एंटोनियोस फ्रेंड. जो एंटोनियो का फ्रेंड जो यहाँ पे बुशानियो है, इसका जो फ्रेंड होता है, इसकी वाइफ होती है पोर्शिया, वो आती है एंटोनियो की हेल्प करने के लिए इन अ डिस्गाइज वे, ड्रेस्ड एज अ लॉयर एंड सेव्स एंटोनियो. और वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ लॉयर, और अपनी जो उसकी मेड सर्वेंट होती है, जो उसकी लेडी मेड सर्वेंट होती है, उससे वो क्लर्क के रूप में आती है, डिस्गाइज होती है. और दोनों मिल करके पोर्शिया जो होती है वो एक मर्सी का लेसन साइलॉक को बताती है, और इस तरीके से वो एक कोर्ट का जो एक डिस्प्यूट होता है वो उसको विन कर लेती है, और एंटोनियो को इस कोर्ट के जो मैटर से वो उसको निकालती है. और वो इस तरीके से ये स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस की होती है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंटली विलियम शेक्सपियर ने इसको नरेट किया है, इसको डिस्क्राइब किया है थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियो, शेलॉक, बिशानियो, पोर्शिया एंड
had maid servants. So this was the brief summary of this play. I hope आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल क्या स्टोरी है इस प्ले की. और चलिए अब बात कर लेते हैं themes की. What are the important themes involved in this play? And the first is prejudice and intolerance. Prejudice and intolerance जो कैरेक्टर यहाँ पे है वो है शिलॉक का, और intolerance is also विशानियों के कुछ कैरेक्टराइजेशन से मिलता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे शिलॉक के भी कैरेक्टराइजेशन से आप देखोगे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थीम, prejudice and intolerance involved in this play, The Merchant of Venice. Next है human and animal. This is also a theme that was described by William Shakespeare. Next important theme in this play is law, mercy and revenge. क्योंकि जो एंटोनियो होता है वो एंटीसेमेटिक है, जो यहूदियों के अगेंस्ट होता है, एंड उसी जगह पे शिलॉक जो होता है जिससे वो एंटोनियो पैसे उधार लेता है, वो ज्यू है, वो ज्यूइश एक मनी लेंडर है, और इस तरीके से एक रिवेंज लेता है शिलॉक एंटोनियो से जब वो उसके पैसे नहीं पे कर पाता है और उसे उसके फ्लैश को मांगता है, उसके मांस को मांगता है, उसकी बॉडी से. और एक तरीके का मर्सी का जो लेसन पोर्शिया उसको डिपिक्ट करती है इस प्ले में. पोर्शिया के थ्रू ये मर्सी का लेसन इसमें डिस्क्राइब किया गया है, लेसन सिखाया जाता है, लेसन दिया जाता है जो कि शिलॉक को दिया जाता है. एंड लॉ है बिकॉज ही टेक्स मनी लोन फ्रॉम शिलॉक, तो उसको रीपे भी करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले इज ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी. ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम इन दिस प्ले. एंड नेक्स्ट इज लव एंड फ्रेंडशिप. लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बोसानियो का जो फ्रेंडशिप होता है ये फ्रेंडशिप है. इसके साथ साथ लव इज बिटवीन पोर्शिया एंड बसानियो. सो these all are important themes: prejudice and intolerance, human and animal, law, mercy, revenge, greed and generosity, love and friendship are important themes of this play, The Merchant of Venice. Next बात कर लेते हैं important quotations की, and the first is all that glitters is not gold. This is one of the famous and most asked quotation in your exams, जो कि all that glitters is not gold is taken from this play जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है. एंड दिस वाज सेड बाय प्रिंस ऑफ मोरक्को. एक्ट सेकंड सीन 7 में ये स्पीच या ये कोटेशन बोला गया है प्रिंस ऑफ मोरक्को के थ्रू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन ऑफ दिस प्ले इज इफ यू पिक अस वी डू नॉट ब्लीड. मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही ये कोटेशन है. एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से है, पोर्शिया का ये स्पीच है. नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ if it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. बहुत ही फेमस कोटेशन है और ये एक पोइटिक लाइन है that was said by Portia in a law scene. जो लॉ का कोर्ट का सीन होता है इस प्ले में, उसमें पोर्शिया ने ये स्पीच, ये कोटेशन, ये लाइन बोली है फॉर शिलॉक. एंड पोर्शिया का ये जो स्पीच है एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट का ये कोटेशन है. एंड आई हैड डिस्कस्ड ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट कोटेशन ऑफ दिस प्ले. टेम्पेस्ट की अगर हम बात करें तो ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने अपनी लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है, जो कि रोमांसिस प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लास्ट फेज ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर ही हैड रिटन रोमांटिक प्लेस जिसमें आपको ट्रेजिक एंड कॉमिक दोनों सीन्स या दोनों तरीके के स्टोरी को देखने को मिलेंगे इनके लास्ट फेज में. एंड टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस and Winter's Tale, these all are the important works written during the time of the last phase of the literary career of William Shakespeare. तो आज हम इस सेशन में जो बात करेंगे वो हम important चीज जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, विलियम शेक्सपियर के इस प्ले द टेम्पेस्ट की इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, समरी, कैरेक्टर्स, themes, quotations and analysis of the play we are all going to discuss here in this video. Please friends, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपने नोट्स अपने साथ में रखो so that you can note down the important facts related to this play. और without any delay चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. And the first we are going to discuss the introduction of the play Tempest. और इससे पहले फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो यूजर नेम है इंग्लिश जोन के नेम से मैं हूँ इंस्टाग्राम पे. वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कोटेशंस एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम के पेज पे, इंग्लिश जोन के पेज पे आपको वहां पे देखने को मिलेंगे. तो प्लीज फॉलो मी
ऑन एंगलेट जोन। और इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा ग्रुप 7838343836 ये नंबर है। आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे, सो दैट मैं आपको ग्रुप में इंक्लूड कर सकूं और वहां भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, एंड हियर वी हैव द फर्स्ट इंट्रोडक्शन and let's discuss. The Tempest is a play which was written by English playwright William Shakespeare. We all know William Shakespeare was very famous for his dramas written during the time of the Elizabethan era. And जो भी उन्होंने plays लिखे हुए हैं, they were divided into tragic plays, comedy plays, and also chronicle plays. And but कुछ ऐसे plays हैं which have the both elements tragic and comedy. This Tempest play is one of them, and it was written during the time of the 1610 to 1611. ये टाइम ड्यूरेशन था बिटवीन 1610 टू 1611। ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है और इनका जो लास्ट फेज था लिटरेरी करियर का वो 1613 तक का था। एंड आफ्टर दैट 1616 में इनकी डेथ होती है, and thought to be one of the last plays that Shakespeare wrote alone. Next one important introduction we have about this play. The Tempest is listed in first folio 1623 में ये फर्स्ट फोलियो के पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर नोट डाउन करिए अपने नोट्स में। एंड द फर्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज, इट डील्स विद बोथ ट्रेजिक एंड comic themes. This was the included in the theme of the Tempest. We all know this has स्टार्टिंग में आपको इस प्ले में कुछ ट्रेजिक सीन्स देखने को मिलेंगे, बट आफ्टर दैट जो एंड होता है इस प्ले का वो हैप्पीली एंड होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट, वी कैटेगराइज दिस प्ले इन ट्रेजिक कॉमिक प्ले, एंड बिकॉज इट हैज द बोथ सब्जेक्ट मैटर डील्स विद इन दिस प्ले। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, एंड वी हैव द कैरेक्टर्स हियर, क्योंकि कैरेक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए। कैरेक्टर्स के बारे में आप जान लोगे, उसके बाद आपको स्टोरी समझने में थोड़ा इजी होगा और आप उसको कन्विंसली समझ सकते हो कि क्या स्टोरी डिस्कस की है, कौन कौन से कैरेक्टर थे। इसीलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। द फर्स्ट मैन हु वाज Prospero. Prospero, the rightful Duke of Milan, and he was the father of the heroine Miranda. And Miranda की बात कर लेते हैं, daughter of Prospero. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एरियल, अ स्पिरिट इन सर्विस टू प्रोस्पेरो, जो उनको एक आइसोलेटेड आइलैंड पे मिलता है। ये एरियल स्पिरिट है जो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मैजिक के एक तरीके से आप कर लो कि ये उसको अपने कैप्चर कर लेते हैं अपने मैजिकल स्पेल के थ्रू। उसको जो भी ऑर्डर देते हैं वो उसको फॉलो करता है, वो उसकी उनकी सर्विस में होता है। दैट्स व्हाई अ स्पिरिट इन सर्विस टू प्रोस्पेरो। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर एरियल इन दिस प्ले टेम्पेस्ट। कैलिबन की बात कर लेते हैं। कैलिबन वाज आल्सो सर्वेंट ऑफ द प्रोस्पेरो एंड अ सैवेज मॉन्स्टर। ये सैवेज मॉन्स्टर है जो इनको स्टार्टिंग में परेशान करता है, बट क्योंकि प्रोस्पेरो वाज अ magician in this play and he made servant Caliban of him. And next important character we have Alonso, king of Naples. and king of Naples होते हैं Alonso, जो कि फादर होते हैं फर्डिनेंड के। सेबेस्टियन की बात कर लेते हैं, एलोंजो का ब्रदर है सेबेस्टियन। एंटोनियो प्रोस्पेरो का ब्रदर है, जो कि प्रोस्पेरो को उनके किंगडम से अलग कर देता है, उनको एक बैनिश कर देता है एन आइसोलेटेड आइलैंड विद हिज 3 years old daughter that was Miranda. एंटोनियो प्रोस्पेरोस ब्रदर, बात कर ली हमने इनकी। फर्डिनेंड की बात कर लेते हैं, फर्डिनेंड एलेंजो सन, और ये फर्डिनेंड जो होते हैं ये मिरांडा के लवर होते हैं, तो इनको हम मिरांडा के लवर के नेम से भी जानते हैं इस प्ले में। गोंजालो, एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर ऑफ प्रोस्पेरो। ये रहा कैरेक्टर्स टेम्पेस्ट प्ले का। चलिए स्टोरी की बात कर लेते हैं। द समरी ऑफ द प्ले, बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इस प्ले की समरी को। प्ले स्टार्ट विद Alonso is on a ship start sailing near to the island. एलोंजो से यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉर्म से ये प्ले स्टार्ट होता है, जहाँ पे एलोंजो जो है, जो फादर है फर्डिनेंड का, वो सेलिंग करता है। वो लोग जा रहे होते हैं नियर एन आइसोलेटेड आइलैंड, और ये सेम वही आइलैंड है जहाँ पे प्रोस्पेरो को वैनिश किया गया था उनकी डॉटर, उनकी 3 years डॉटर के साथ में, जिनका नेम मिरांडा था। एंड ही is with his son Ferdinand and his brother Sebastian
प्रॉस्पेरो's ब्रदर एंटोनियो। तो शिप में जो लोग होते हैं उसमें जितने भी लोग इंक्लूडेड होते हैं एक कॉन्स्पिरेसी में जिसके थ्रू प्रॉस्पेरो को उनके किंगडम से वैनिश किया जाता है, दे ऑल वर सेलिंग टुवर्ड्स दैट आइलैंड। और वहां पे फिर क्या होता है, एक स्टॉर्म आता है दैट वाज क्रिएटेड बाय प्रॉस्पेरो, एंड प्रॉस्पेरो नोज दिस एंड यूजेस हिज मैजिक टू क्रिएट अ सी स्टॉर्म। ये बात हो गई कि प्रॉस्पेरो ये सब कुछ जानता है कि ये लोग एक सेलिंग के थ्रू, शिप सेलिंग के थ्रू यहाँ आइलैंड के आसपास आए हुए हैं। इसी वजह से वो एक अपना एक रिवेंज लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए वो अपनी मैजिकल स्पेल्स करता है, मैजिक को यूज करता है टू टेरिफाइड देम। And Miranda watches the storm and the ship from the shore of the island and asks Prospero to calm the storm down. मिरांडा जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, बहुत ही फेथफुल कैरेक्टर है, वो सब कुछ देखती रहती है और वो अपने फादर को बोलती है प्लीज स्टॉप ऑल दिस बिकॉज दे आर इन डेंजर एंड देयर लाइफ इज इन डेंजर। और प्रॉस्पेरो फिर क्या करता है, अपने मैजिकल पावर को वो डेवलप करता है एंड ही क्रिएट्स द स्टोन विद द हेल्प ऑफ एरियल। एरियल जो इसका एक स्पिरिट होता है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अपने मैजिकल स्पेल्स को यूज करता है प्रॉस्पेरो, वो उसकी हेल्प से a spirit and he makes sure Ferdinand is separated from his father Alonso। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो स्पिरिट जो होता है वो बिलीव कराता है कि उसके फादर को, एलोन्जो फर्डिनेंड को, वो श्योर करता है कि यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फादर एंड फर्डिनेंड इज नो मोर, ऐसा कुछ वो क्रिएट करता है सीन सो दैट कि यहाँ पे एलेंजो ये सब बिलीव कर ले कि उसका बेटा अब नहीं रहा। बट ऑन द अदर साइड फर्डिनेंड जाके मिलता है मिरांडा से और जब वो एक दूसरे को देखते हैं दे फॉल इन लव विथ ईच अदर। दिस इज द स्टोरी। तो एक स्टॉर्म होता है, एक सी स्टॉर्म होता है जिसमें सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स एलोन्जो का जो बेटा होता है फर्डिनेंड वो अपने फादर से अलग हो जाता है और एलोन्जो को बिलीव होता है, वो उसको लगता है कि नाउ हिज सन इज नो मोर, ऐसा एरियल उसको बिलीव कराता है और फर्डिनेंड को भी बिलीव कराता है कि योर फादर इज नो मोर। तो इस तरीके से ये स्टोरी चलती है और फर्डिनेंड जाके मिरांडा से मिलता है हु वाज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, जिसने ये सब कुछ हैवॉक क्रिएट किया है, सी स्टॉर्म क्रिएट किया है। फिर क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। एरियल appears to Alonso and his nobles and tells them they are being punished for हाउ दे ट्रीटेड प्रॉस्पेरो। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये स्टोरी एक तरीके के सबक सिखाने, एक लेसन के लिए देने के लिए है, जो कि प्रॉस्पेरो अपने जितने भी इनके ट्रेटर्स होते हैं, जो भी इनको एक साथ ट्रिकरी किए होते हैं, उनको एक लेसन सिखाना चाहता है। तो इस तरीके से एरियल उसके पास जाते हैं, एलोन्जो के पास, और उसके जितने भी नोबल्स, जो भी उसके ब्रदर या जो उसका फ्रेंड होता है एंटोनियो, इन सब के पास जाकर के उसको बताते हैं कि आप सबको एक पनिशमेंट मिली है बिकॉज यू हैव ट्रीटेड प्रॉस्पेरो बैडली। व्हाट यू हैव डन टू प्रॉस्पेरो, इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। फिर एलेंजो क्या होता है, वो अपोलोजाइज करता है अपने आप को प्रॉस्पेरो के सामने और मेक्स हिम ड्यूक ऑफ मिलान अगेन। और क्या करता है कि प्रॉस्पेरो को ही कमिट्स दिस थिंग्स दैट नाउ you would be the king of the Milan। Prospero then reveals to Alonso that Ferdinand is still alive। देन आफ्टर दैट प्रॉस्पेरो जो होता है, जो मिरांडा का फादर है, वो बोलता है कि बिकॉज ही इज वेल नोन ऑफ द स्टोरी दैट हिज डॉटर इज इन लव विद फर्डिनेंड। तो वहां पे वो बोलता है कि योर सन इज अलाइव एंड he is in love with Miranda, engaged to Miranda। and फाइनल स्पीच में क्या होता है कि प्रॉस्पेरो जो फाइनली जो इसका जो एक बहुत ही फेमस है, अभी मैं कोटेशंस के थ्रू उसको आपको बताऊंगी, तो बहुत ही फेमस स्पीच है इस प्ले की। वहां पे क्या होता है, प्रॉस्पेरो सभी को माफ कर देता है और वो किंग ऑफ नेपल्स बन जाता है। और लास्ट जो सीन होता है इस प्ले का, उसमें प्रॉस्पेरो बोलता है इन द फाइनल स्पीच, प्रॉस्पेरो टेल्स द ऑडियंस दैट only with their applause will he be able to leave the island with the rest of the party and Prospero leave the stage to the audience and applause। ये चीजें ऑडियंस अप्लॉज के थ्रू स्टेज को छोड़ता है। एंड जो एक स्टोरी है कि हाउ ऑल द सीन्स आर क्रिएटेड इन दिस सीन, इन दिस प्ले, बट एट लास्ट एवरीथिंग एंड्स हैप्पीली। दिस इज द मेन स्टोरी ऑफ द play, and that's why this play is called a tragic comic play by William Shakespeare। We all know that is the Tempest। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थीम ऑफ द प्ले, एंड it explores many themes including betrayal,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटोनियो जो प्रोस्पेरो का ब्रदर होता है, प्रोस्पेरो उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, बस वो उसको डिसीव करता है. सो betrayal and trickery is the important theme included in this play. Revenge is another. रिवेंज एंड फॉरगिवनेस इस प्ले का जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है या इम्पोर्टेंट आप सब्जेक्ट मैटर की बात कर लो, दैट इज रिवेंज एंड फॉरगिवनेस. रिवेंज जैसे कि सी स्टॉर्म क्रिएट किया जाता है प्रोस्पेरो के थ्रू कि उसको किंग ऑफ नेपल्स बनने से रोक दिया जाता है, उसको बैनिश कर दिया जाता है एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जहाँ पे वो अपनी 3 इयर्स डॉटर के साथ रहता है आइसोलेटेड आइलैंड पे, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल करता है, किस तरीके से वो ग्रेट मजिशियन बनता है. तो एक रिवेंज प्रॉस्पेरो लेता है जब वो जितने लोग उस कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूडेड होते हैं, जब वो उसी सी आइलैंड के आसपास होते हैं, तो वो एक रिवेंज लेता है सी स्टॉर्म क्रिएट करके. एंड इन द लास्ट ऑफ द प्ले उन सभी को वो माफ कर देता है. एंड मैजिक, बिकॉज दिस वाज द मैजिक दैट वाज स्पेल्ड बाय प्रॉस्पेरो, और वो क्रिएट करता है स्टॉर्म. कोलोनाइजेशन की बात विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले टेम्पेस्ट में की है, क्योंकि जो आइसोलेटेड आइलैंड था दैट वाज अ काइंड ऑफ कोलोनाइजेशन, जहाँ पे उसको एक तरीके से उपनिवेश किया अपने आप को और एक अपना घर बनाया वहां पे. द सुपरनेचुरल, एरियल एंड कैलिबन. एरियल की बात हो रही है तो एरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्ले. ही वॉज द कैरेक्टर एरियल जिसकी बात यहाँ पे हो रही है. एंड द सुपरनेचुरल थिंग्स एंड मैजिक्स दैट ऑल हैपेंड इन दिस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. स्लेवरी वी हैव. स्लेवरी इस वजह से कि कैलिबन को स्लेव बनाता है प्रॉस्पेरो अपने मैजिकल स्पेल्स के थ्रू. एंड ऑल्सो एरियल इन हिज कैप्टिवेशन. पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन. पावर और एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले का. पावर, जिस तरीके से पावर मिलती है एंटोनियो को, तो वो प्रॉस्पेरो को वैनिश कर देता है किंगडम से. और जब पावर प्रॉस्पेरो को मिलती है तो वो किस तरीके से एरियल और अपने जो कैलिबन होता है उसको किस तरीके से अपनी सर्विस में लेता है, अपने इन्फ्लुएंस में लेता है, और उसके थ्रू जितने भी मैजिकल स्पेल्स होते हैं वो उनसे करवाता है. सो ओवरऑल अगर हम थीम की बात करें तो बेट्रायल, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, कोलोनाइजेशन, मैजिक एंड सुपरनेचुरल, these all are the important themes included in this play, The Tempest. Next हम बात करते हैं quotations की, and the very first quotation we have here, the real action is in virtue than in vengeance. ये बहुत ही important quotation है इस play का, and ये act 5th सीन फर्स्ट में बोला है. एंड दिस वाज सेड बाय प्रॉस्पेरो, और बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ wonder how many goodly creatures are there here and how beauteous mankind is. Oh brave new world, ये बहुत ही important है. Oh brave new world that has such people in it. This was said by Miranda जब वो ऐसे लोगों को देखती है वो आइसोलेटेड आइलैंड पे, क्योंकि अभी तक वो आइसोलेटेड आइलैंड पे अपने फादर के साथ रहती है और एरियन एंड कैलिबन जैसे स्पिरिट या एक मॉन्स्टर को देखती है. बट व्हेन शी sees all these things related to humankind और creatures को देखती है, human creatures को देखती है, then she behaves and then she expresses her feelings through these words, these lines. How many goodly creatures are there here, how beauteous mankind is, oh brave new world that has such people in it. Act 5th, scene first का scene ये speech है, and it was spoken by Miranda. And next important quotation we have, you taught me language and my profit on it is I know how to curse. ये important lines हैं टेम्पेस्ट की, जो कि कैलिबन बोलता है प्रॉस्पेरो से एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, जब कैलिबन को वो कुछ मैजिकल प्रॉस्पेरो मैजिकल स्पेल्स उसको स्टार्ट करता है. तो ये उसकी लाइंस हैं, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माय प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स. किस तरीके से कर्स करना है, किस तरीके से परेशान करना है, and I know it very brilliantly, and this was all taught by you. So friend, this was the quotations we have discussed. Even बहुत सारे quotations हैं इस play में, but I have already discussed few important quotations included in this play. And please वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करिए, and please like, share this video and also subscribe this channel for the more informative videos related to English literature. और next हमारा जो part होगा वो हम MCQ से डिस्कस करेंगे.